Assalamu alaikum. Today I'm going to explain to you the second lecture of DSP. We have the contents signal system, basic operations on system for signal recovery, zeroth and first order and second order system hold use of unit step and unit impulse in signals, even and odd decomposition. So let's have a look at system. It gives us a response to provided input signal. As we have shown, it is a process. A system is a process which applies on input signal and gives us the another form of signal, which is the output signal. So in short, it is a process signal to create another. uh, the process is applied on the input signal and it creates another form of signal, which is the output signal. So now let's have a look at the basic so our first basic operation is flipping. When a system applies flip on the input signal, it turns out like this: x of minus n. So we have x of n in discrete form like this. As I said, to flip the signal we have to flip the paper also. So now what flipping does, if we have to draw an output signal and we have to draw y of 1, so as this equation suggests that y of 1 will be equal to x of minus 1, so we have to check the value of the input signal at x of minus 1, which is actually at x of minus 1 we have minus 1. So we have at y of 1 we have x of minus 1 and the value is at y of 1 is minus 1. Similarly at y of 2 we have to check that the input signal x of n had values on minus 2. So we had this value on minus 2, which is 2, and similarly y of 3 we had x of minus 3, which is 2. So this is the flipping. Now let's move to shifting. We have another signal given in discrete form which we term it as x of n. Now what shifting tells us is we have to shift the signal at x of n plus 2. If we have to calculate y of minus 1, then we have to simply put minus 1 instead of 1 in the index, and note that there will be only change in index, not in amplitude. So for y of minus 1, the formula suggests us that we will have value of x of 1. At x of 1 we have 1. So we have y of minus 1 is equal to x of 1, which is equal to 1. So drawing the output signal at y of minus 1, which is equal to 1. Similarly, we can draw the other indexes also. Our next basic operation is scaling. We are provided with an input signal in discrete form. So what we have to scale it on to an index to n, not on amplitude. So if we have to find y of 1, we have just put 1 instead of n, so we'll get x of 2. So y of 1 is equal to x of 2. At x of 2 we had 2, so y of 1 is equal to 2. So y of 1 is equal to 2. At y of 2, similarly we have x of 4. X of 4 is equal to minus 1. So x of 4 value is minus 1. So we have y of 2 here, which is equal to minus 1, which is equal to also x of 4. So we can also do scaling of other indexes by using the same procedure. Now what will happen अगर हमारे पास इस तरह का सिग्नल दिया हुआ है, तो फिर हम इसको कैसे ड्रा करेंगे? तो उसके लिए रूल ये है कि सबसे पहले हमने शिफ्ट करना है, फिर फ्लिप करना है और स्केल करना है। तो हमारे पास जो 3 फॉर्म्स बनेंगी वही बनेंगी, n+3 शिफ्ट, फिर ये फ्लिप और ये स्केल। और पीछे मैं आपको बता चुका हूँ इनको कैसे ड्रा करना है। तो जब ये वाला ड्रा कर लेंगे आखिरी पार्ट, तो हमारे पास रिक्वायर्ड सिग्नल आ जाएगा। जब हम सिग्नल को एक्सपेंड करते हैं तो बहुत सारे एरर आ जाते हैं, इसमें बहुत सारे सैम्पल्स पे हमारे पास वैल्यूज़ नहीं आती। फॉर एग्जांपल -3 पे हमारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ 2 पे है, लेकिन जब हम सिग्नल इसका एक्सपेंड कर देंगे इसके बाद इस सिस्टम से गुजारेंगे तो -3 पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इसको रिकवर करने के लिए कोई प्रोसीजर होता है, और उन प्रोसीजर में हम ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर को देखते हैं। तो सबसे पहला मेथड हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर है। ज़ीरो ऑर्डर में हम क्या करते हैं, पुटिंग सेम वैल्यूज़ एम्पलीट्यूड सैंपल इफ सैंपल एम्पलीट्यूड इज़ ज़ीरो। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास किसी एक एम्पलीट्यूड पे वैल्यू नहीं गिवन है, तो हम उसको जो प्रीवियस वाली वैल्यू है वही कंसिडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पीछे हमने देखा था, जो हमारे पास ये सिग्नल है, इसमें अब -3 पे कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन -4 पे हमारे पास -2 की वैल्यू है। तो हम -3 पे भी कंसिडर करेंगे कि -2 की वैल्यू है, एंड -1 पे भी कोई वैल्यू नहीं है, और -1 पे हम कंसिडर करेंगे कि -2 की वैल्यू है। तो इसी तरह हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेंगे और इसकी आउटपुट आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर होल्ड है। फर्स्ट ऑर्डर होल्ड में हमारे पास हम स्लोप्स की मदद से वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल -3 पे हमारे पास नहीं है वैल्यू, लेकिन हम यहाँ पे स्लोप ड्रा करते हैं। हमें पता है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4 और -2, और इसके भी कोऑर्डिनेट्स हमें पता है कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और -1। तो बाय यूजिंग दिस कोऑर्डिनेट्स हम इस फार्मूले की मदद से स्लोप्स निकालेंगे इसके, और स्लोप से हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो इस तरह हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। इसमें टेलर सीरीज और ट्रेपेजॉइडल रूल भी यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर में हमारे पास सिग्नल रिकवरी की एक टाइप है। इसमें हमारे पास 3 सैंपल्स हम लेते हैं, और बाय यूजिंग दिस सीरीज़ हम अपना सिग्नल ड्रा करते हैं। इसको हम एवरेजिंग ऑफ सिग्नल भी कहते हैं।
हमारे पास कुछ स्पेशल सिग्नल्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल यूनिट इम्पल्स और यूनिट स्टेप। अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स को अगर हमने सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना तो हम दोनों की मदद से कर सकते हैं। यूनिट इम्पल्स में आप जैसे कि हमें पता है कि n इज इक्वल टू 0 पे 1 होगा और बाकी सब जगह 0 होगा। और यूनिट स्टेप जो होगा n इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 पे 1 होगा, बाकी सब जगह 0 होगा। इसकी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, ये हमारे पास सिग्नल के अंदर, इसको हम यूनिट इम्पल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास 1 पे एम्पलीट्यूड n इज इक्वल टू 1 पे एम्पलीट्यूड 2 है, तो n इज इक्वल टू 1 पे देखें एम्पलीट्यूड 2 आ गया हमारे पास, और n माइनस 1 विच मीन्स n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, और इसको हम यूनिट इम्पल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिर्फ एम्पलीट्यूड इसमें चेंज करना है और साइन का देखना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें n इज इक्वल टू -2 पे -1 एम्पलीट्यूड, तो -1 एम्पलीट्यूड n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू -2 पे। तो इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे हमारे पास इवन एंड ऑड कंपोजिशन है। इवन एंड ऑड कंपोजिशन में हमारे पास ये फार्मूलाज गिवन है। हम किसी भी सिग्नल की इवन एंड ऑड कंपोजिशन निकाल सकते हैं। इवन कंपोजिशन हमेशा सिमेट्रिक होगी, और यहाँ ये देखें, इन इवन कंपोजिशन द वैल्यूज टू द लेफ्ट एंड राइट टू ओरिजिन रिमेन द सेम। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये 0 है यहाँ पे, और इसके ये हमारे पास ओरिजिन पे है, तो यहाँ पे भी अगर 1 है तो इधर भी 1 ही होगा। इसका मतलब इसकी लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी 1 ही होगा। जो वैल्यूज़ होंगे n इज इक्वल टू 1 पे भी 1 होगा, n इज इक्वल टू -1 पे भी 1 ही आएगा। बट इन ऑड कंपोजिशन इसके अपोजिट है। ऑड कंपोजिशन में फार्मूला चेंज हो जाते हैं, फार्मूला चेंज होता है, ये नॉन सिमेट्रिक होता है। इसमें हो सकता है कि एम्पलीट्यूड सेम हो, लेकिन साइन हमेशा डिफरेंट ही आएंगे बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।